Welcome students in today's class. Now the next topic is constructor in C++. Now what is the feature of constructor? First of all, what do you mean by constructor? Constructor is a special member function of a class. ठीक है, constructor क्या रहेगा? एक member function रहेगा. It's a member function of a class, but it is a special member function. Why it is called special member function? Its task is to initialize the object of a class. Constructor का task क्या है? ये initialize करता है class का object. It is special because its name is same as a class name to which it belongs. ठीक है, ये constructor special member function क्यों है? Because its name is same as the class name. जो class का नाम रहेगा वही इस constructor का नाम आपको रखना पड़ेगा. तो that's why it is called as a special member function. After that, the constructor is invoked whenever the object of associated class is created. ठीक है, तो constructor function कब call होगा? जब आप class का object create करोगे, then constructor ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. हम इसके पहले क्या करते थे? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे. सपोज आपकी क्लास है ABC, ठीक है, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाते थे. सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A नाम से. आफ्टर दैट जो भी मेंबर फंक्शन को आपको एक्सेस करना है, तो आप एक्सेस कैसे करते थे? ऑब्जेक्ट नेम, आफ्टर दैट डॉट ऑपरेटर. सपोज मुझे फाइंड फंक्शन को एक्सेस करना है, तो आप लिखते थे फंक्शन का नाम, जो फंक्शन आपको एक्सेस करना है. लाइक दिस, यू आर कॉलिंग दैट particular member function, but constructor automatically call हो जाता है when you are creating a object of a class. जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. इसको हमको अलग से विद हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर कॉल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास. डेटा जो भी डेटा मेंबर फंक्शन में आपने वैल्यू डिक्लेयर की है उसको कंस्ट्रक्ट करता है. A constructor never written any value, hence it has no written type, even the void. ठीक है, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे at that time you don't need to write any written type. आपको वहां पे कोई written type देने की जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्टर cannot be static. कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता, पहले से फिक्स्ड नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टर. They should be declared in public access specifier. आपको कंस्ट्रक्टर के साथ एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा लेना है? पब्लिक. After that, they cannot be inherited through a derived class. अगर आपने next topic is inheritance, we will see what is derived class. Derived class का concept क्या है हम बाद में देखेंगे. After that, syntax of constructor. आप constructor कैसे create करोगे? Suppose मैंने class बनाई constructor नाम से. I create a class, class name दिया मैंने constructor. You can give any name to your class. For example, ABC, XYZ, जो भी आपको नाम देना है, you can give. Here I am giving a name, that is constructor. After that, opening curly bracket, then मैंने access specifier दिया private, दो variable बनाए int a, b. After that मैंने access specifier दिया public. This is constructor, this is member function. मुझे कैसा पता चल रहा है ये member function constructor है? Because its name is same as the class name. जो class का नाम है वही इस member function का नाम है. As well as इसके साथ कोई written type नहीं है. It means it is a constructor. यहाँ पे सिर्फ हमने constructor को declare किया और क्लास को टर्मिनेट कर दिया. Now I am defining this constructor outside a class, so I can define with the help of scope resolution operator. Scope resolution operator हमने previously देखा था, ठीक है. तो scope resolution operator की हेल्प से जो भी आपने member function inside a class declare किया है, you can define that outside a class with the help of scope resolution operator. कैसे लिखते हो? class name, class नाम क्या है? class का नाम क्या है? constructor. After that, scope resolution operator, then function name. कौन से function को access करना है आपको? constructor. ठीक है, तो यहाँ पे आपने function name लिखा. After that, opening curly bracket, इसमें जो दो variable लिए थे आपने a और b, इसकी value define की. a equals to 0, b equals to 0. So this is your constructor. After that, features of constructor. Whenever a class contain a constructor, like example in it, it initialize automatically when the object of a class is created. That is, जैसे आपने क्लास बनाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप लिखोगे, इसके नीचे वॉइड मेन और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे? आप मेन फंक्शन लिखोगे, वॉइड मेन. आफ्टर दैट क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम ओपन करली ब्रैकेट, क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर. ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे लिखोगे आप कंस्ट्रक्टर. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट बनाया सी. तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो क्लास का, then this constructor function gets called automatically when the object of a class is created. After that,
फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने क्लास बनाई है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है सी, ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, वी कैन से कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, क्लास टाइप का वेरिएबल है आपका ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट ओनली क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दैट इज वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज सी ऑफ द टाइप इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, बट ऑल्सो इनिशियलाइज द डेटा मेंबर एंड टू जीरो, ठीक है, एम एन टू जीरो। इसने क्या किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किए, साथ में जो वेरिएबल्स थे दैट इज ए और बी, हियर आई एम यूजिंग एम एन एन, दैट इज ए एंड बी, ठीक है, ए और बी जो वेरिएबल्स थे उसको वैल्यू भी इनिशियलाइज की, दैट इज जीरो, ठीक है। So this is the features of your constructor. After that next is destructor. अब destructor क्या होता है, destructor is a, as per the name implies, or destructor as per the name implies, it is used to destroy the object that has been created by constructor. constructor जो भी object, जो भी variable create करता है, जब भी आप लिखते हो variable int a, तो at that time क्या होता है, मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट होती है दैट इज a नाम से, उसके लिए जो भी वैल्यू आपने असाइन की वो वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये जो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर is invoked implicitly by the compiler upon the exit of your program. आपको डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, टू क्लीन अप द स्टोरेज दैट हैज बीन नो लॉन्गर एक्सेसिबल, जो वेरिएबल का ज्यादा यूज नहीं है, जो भी वेरिएबल कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया है और उसका फ्यूचर में यूज नहीं है, तो उसको जो क्लीन करने का काम होता है, डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, दैट इज डन बाय डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम इज सेम एज द क्लास नेम, डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम एज अ क्लास नेम होगा, बट इट इज प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन, ठीक है, उसके पहले आपको डिस्ट्रक्टर फंक्शन के पहले ये वाला साइन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्लास डिस्ट्रक्टर बनाया, इंटीजर नाम से आपके फंक्शन का नाम है इंटीजर, आफ्टर दैट ये साइन, तो इट मीन्स दिस इज अ डिस्ट्रक्टर। It is declared with no written type since it never written any value. इसके साथ भी आप कोई written type नहीं लिखोगे तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी not returning any value. It take no argument, यहाँ पे कोई पैरामीटर आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर सकते। It is declared in public access specifier. डिस्ट्रक्टर के साथ आपको access specifier यूज करना है, that is public. After that this is the program. एक मैंने सैम्पल प्रोग्राम लिया है यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, बोथ आई एम यूजिंग इन दिस कोड। फर्स्ट यू हैव टू राइट हेडर फाइल लिखी iostream.h, उसके बाद मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया टेस्ट, आफ्टर दैट एक्सेस स्पेसिफायर लिया पब्लिक, दो वेरिएबल लिए y and z, ठीक है, उसके बाद मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, मेंबर फंक्शन है इसके साथ, लेकिन कोई रिटन टाइप नहीं है एंड इट्स नेम इज सेम एज अ क्लास नेम, इट मींस इट इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्या है ये कंस्ट्रक्टर, कैसे पता चल रहा है, इट्स नेम इज सेम एज अ क्लास नेम एज वेल एज इट हैज नो रिटन टाइप, इट मींस इट इज अ कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने इसमें लिखा जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू दी 7, वेरिएबल z है उसकी वैल्यू दी 13। आफ्टर दैट आई क्रिएट हियर अ डिस्ट्रक्टर, मुझे कैसे पता चल रहा है डिस्ट्रक्टर, बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज अ क्लास नेम एंड इट इज प्रिसीडेड बाय टाइप साइन, दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कोड होगा, यहाँ पे मैंने एम्प्टी डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, आफ्टर दैट क्लास को टर्मिनेट कर दिया। देन इंट मेन या वॉइड मेन, जो भी आपको रिटर्न टाइप लेना है, यहाँ पे इंट मेन क्यों लिया है, क्योंकि एक कैलकुलेशन होके मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इंट मेन। आफ्टर दैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का नाम क्या है टेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनाया ए, ठीक है। तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या लिखा है, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू, प्रिंट किया द सम इज y प्लस a डॉट z, मींस वैल्यू एंड z की वैल्यू हमने कॉल की, आफ्टर दैट क्लोज करली ब्रैकेट, तो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। In this program I am explaining constructor and destructor. I will show you execution of this code also, ki how we can run this code. Here I am using online editor, okay, so first I am using the header file, after that I am using a class that is test नाम की हमने क्लास बनाई थी, after that दो access specifier लिए थे y and z,
ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आफ्टर दैट ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगा कि ऑब्जेक्ट ए ने y की वैल्यू प्लस z की वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आई एम रनिंग दिस कोड। हमने देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं किया, इट ऑटोमेटिकली कॉल कब कॉल हुआ, जब क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया तब ऑटोमेटिकली कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आफ्टर दैट डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो ये जो y और z के लिए स्पेस क्रिएट हुई थी उस स्टोरेज को क्लीन अप करने का काम है डिस्ट्रक्टर का। तो दिस इज योर कोड ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज types of constructor. First is default constructor. There is a type of constructor. First constructor is default constructor. Default constructor में आप कैसे लिखोगे default constructor? For example, जो हमने previously discuss किया, that is our default constructor. वो हमारा default constructor था class, class name. ठीक है, जो भी आप class बनाओगे, keyword use करते हैं हम class. After that class name जो भी रखना है आपको, A, B, C, X, Y, Z. ठीक है, आफ्टर दैट बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट इज योर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्लास बनाई नेम नाम की, आफ्टर दैट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, अब जो क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा। सपोज क्लास का नाम मैंने नेम रखा तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी नेम रहेगा। तो दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमने प्रीवियसली देखा था वही हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसके साथ आप पैरामीटर पास करोगे, आर्ग्यूमेंट पास करोगे, वेरिएबल पास करोगे, दैट इज you are passing a variable, that is nothing but a parameter. Variable को हम बोलते हैं parameter as well as argument बोलते हैं। ठीक है, for example जैसे class name, after that parameter list, then body of your code. For example मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट नाम से, उसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए, एक int a एक int b। ठीक है, a और b दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये जो वेरिएबल है इसको बोलते हैं पैरामीटर, एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट पास किए, उसके बाद मैंने a की वैल्यू हाइट के अंदर स्टोर कर दी और b की वैल्यू विड्थ के अंदर स्टोर कर दी। तो दिस इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. Next topic will be inheritance. We will discuss that in next class. Thank you.